Hello my dear kiddos, welcome to the social science video classes. Hope you all are good. आप सब लोग अच्छे हो एंड पढ़ाई कर रहे हो घर पे एंड सारे नोट्स आपने रेडी रखे हैं, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश आवर वर्कशीट. हम आज अपनी वर्कशीट पूरी कर लेंगे क्योंकि इसमें अब ज़्यादा कुछ बचा भी नहीं है. Just the last 3 exercises we have, right? Okay, now activity based questions हम कर रहे हैं and हमने अपना puzzle 1 and अपना puzzle 2 complete कर लिया है. Now today what we are going to do in activity based questions is we have to make hands in the clock. Clock तो हमने अभी तक क्या किया, हम लोग पढ़ते थे, ओरल करते थे और मैं आपसे पूछती थी स्मॉल हैंड एंड बिग हैंड नंबर्स बताकर आपको पूछती थी मैं कि अगर मान लो स्मॉल हैंड 7 पे है एंड बिग हैंड 6 पे है तो व्हाट विल बी द टाइम. ऐसे मैं आपको अभी तक ओरल पूछती थी. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज वी आर गोइंग टू मेक द हैंड्स इन द क्लॉक. हम क्लॉक में हैंड्स बनाएंगे, स्मॉल हैंड एंड बिग हैंड, so that we know कि हमें टाइम देखना आता है या नहीं, right? So what does the small hand shows? The small hand shows the hour and the big hand shows the minute, right? So the first number so the first number before the colon के पहले का नंबर जो है वो हमारा hours है एंड कोलोन के बाद का नंबर जो है वो हमारा मिनट है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक. सो आवर्स का हैंड इज स्मॉल हैंड, राइट? एंड मिनट्स का हैंड इज बिग हैंड. सो 7 hours. सो व्हाट डू वी मेक, वी मेक अ स्मॉल हैंड ऑन 7. See, we draw a small hand on 7 and 30. So 30 ka hand will come on 6, right? So big hand on 6. So this makes 7:30. Right? Chalo, let's move to the next box. Next box mein what do we have? 5 hours 15 minutes. So small hand on 5, right? So we make our small hand on 5 hours and 15 minutes. So 15 minutes के लिए क्या होगा, हमारा big hand 3 पे आएगा, isn't it? ऐसे. Why? Because 1 पे 5, 2 पे 10, 3 पे 15, isn't it? 5 मिनट्स का गैप होता है ना हर नंबर के बीच में. सिमिलरली हियर इन पिक्चर नंबर 3 में वी हैव 11 hours and 45 minutes. So small hand will be on 11, right? एक्चुअली 11 से थोड़ा आगे रहता है क्योंकि ये 45 दिखाने वाले हैं हम, तो 11 एंड 12 के बीच में आएगा स्मॉल हैंड यहाँ पे. एंड द बिग हैंड विल बी ऑन 9. So this will be your 11 hours and 45 minutes. Why? Because see, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 and 45, right? Okay. Now let's move to the next picture. Picture number 4. Here we have 4 hours and 25 minutes. So 4 hours ka hand will be your small hand. So we make a small hand on 4
and 25 minutes. So we make a big hand on 5, 10, 15, 20 and 25. Big hand on 5. So 5, 4, 25. आपको आपकी 5 का टेबल याद है? अगर आपको 5 का टेबल अच्छे से याद है तो आपको क्लॉक भी अच्छे से आ जाएगा, बिकॉज 5 के टेबल पर ही क्लॉक चलता है. सी, यहाँ से शुरू करेंगे. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 50, 5 11 ज़ा 55, 5 12 ज़ा 60. राइट. सो अगर आपको 5 का टेबल अच्छे से आता है तो आपको क्लॉक भी अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि क्लॉक का जो मिनट्स है वो 5 के टेबल पर ही चलता है. ओके, चलो लेट्स मूव टू आवर पिक्चर नंबर 5. What is it? 10 hours and 30 minutes. So 10 hours में hours का hand, small hand on 10, and minutes का hand, big hand on 6. So 10 hours, 30 minutes. Done? चलो number 8. 8 में we have 8 o'clock, 8 hours, full 8, right? So 8 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Small hand on 8 and big hand on 12. So this is your 8 hours. 8 बज गए, right? Okay, now we move to our next picture. Here in the next question, what we have, see question number 4, we have to write the correct time. मतलब यहाँ पे आपको small hand and big hand बना कर दिया है. You have to look at the time and you have to write the times, hours and minutes, right? So here in the first picture, what do we have? Small hand 7 और 8 के बीच में है and big hand is on 8, right? So small hand 7 और 8 के बीच में क्या आएगा है, तो फिर क्या आएगा यहाँ पर? 7 hours. And 8 पे big hand है, right? So you remember 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40. So we have 7 hours 40 minutes. Done? Okay, let's move to the next picture. In next picture, what do we have? Small hand on 4 and big hand on 10. So what does that mean? This is 10 minutes to 4, or we can say 3:50. 3 बजकर 50 मिनट. So we write 3 over here and 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and 50. 3 hours 50 minutes. अगर ये हैंड 4 से नीचे चला जाता तो ये 4:50 होता, लेकिन ये हैंड जो स्मॉल हैंड है वो 4 से नीचे चला जाता तो ये 4:50 हो जाता, लेकिन जो स्मॉल हैंड है ये 4 से नीचे नहीं गया है. सो दिस इज 3:50. ओके, 3 hours 50 minutes. Okay, now next picture, what do we have? See here 3 and 4 के बीच में we have small hand, right? So straight away यहाँ पर 3 लिख देना है, 3 hours. And उसके बाद big hand कहाँ पे है? 5 के ऊपर. So 5 is 25, isn't it? So see 5, 10, 15, 20 and 25. So we have here
3 hours, sorry, we have here 3 hours and 25 minutes. Done? Chalo, we see the next picture. Next picture में small hand is on 9, so straight away write 9 hours. And big hand is on 2, so 5, 10, right? Big hand minutes का hand, so 9 hours, 10 minutes. So our next question, that is our next picture. What is it? 1 and 2 के बीच में small hand है. So what will be the time? 1 hours. And minutes में क्या आएगा? Minutes में. Now remember, अगर 2 numbers के बीच में आपका small hand है ना, तो हमेशा ऊपर वाला नंबर ही आएगा आवर्स के जगह पे. 2 नंबर्स के बीच में अगर स्मॉल हैंड है तो ऊपर का जो नंबर आएगा वो आएगा हमेशा आवर्स की जगह पे. ओके, सो व्हाट डू वी हैव हियर? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. So 1 hours and 35 minutes. Now, next question. That is our next picture. Here, what is it? Small hand is on 9 and big hand is on 11. So, what is the time? 9:45 नहीं, this is 8:45. अगर 8:55. ये 9:55 नहीं है, ये 8:55 है. अगर ये small hand 10 के ऊपर होता and big hand 11 के ऊपर होता तो ये 9:55 होता. बट अभी क्या है? स्मॉल हैंड 9 के ऊपर है एंड बिग हैंड 11 के ऊपर है. सो दिस इज 8:55. 8 hours and 55 minutes. जब 55 वाला नंबर्स आएगा ना, जब बिग हैंड इज ऑन 11 तो इट इज ऑलवेज 55, राइट? सो 55 मिनट्स वाला जब आएगा ना, तो हमेशा याद रखना है आपका जो स्मॉल हैंड जिस नंबर के ऊपर है उससे एक नंबर नीचे ही रहेगा हमेशा टाइम, 8:55. अगर मान लो आपका स्मॉल हैंड 8 के ऊपर रहता और बिग हैंड 11 के ऊपर रहता तो द टाइम वुड हैव बिन, टाइम क्या होता? 7:55 होता. क्योंकि जब भी बिग हैंड 11 पे है दैट मीन्स मिनट इज ऑलवेज 55. बट जो आवर्स होगा उस आवर्स को हम एक नंबर नीचे ही लिखते हैं, 1 less than. So 1 less than 9 is 8, right? So the time is 8:55. So here we come to the last question of our worksheet. Question number 5. यहाँ पर क्या करना है? See, this is a compass. इस compass में यहाँ पर नीचे आपको options दिए हैं. इस ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पर आपको डायरेक्शंस फिट करने हैं, राइट? सो यू रिमेंबर ऑलवेज इधर क्या आता है? दिस साइड इज ऑलवेज ईस्ट, राइट? सो वी राइट हियर ईस्ट. ईस्ट के ऑपोजिट में इट इज ऑलवेज वेस्ट, इजंट इट? सो ईस्ट के ऑपोजिट में वी राइट वेस्ट. WEST, वेस्ट, है ना? एंड ऊपर क्या आएगा? ऊपर इट विल बी नॉर्थ. एंड नॉर्थ के ऑपोजिट में नीचे इट विल बी साउथ. सो ये 4 मेन डायरेक्शंस आ गए. अभी क्या लिखना है हमें? बाकी बचे हुए सब डायरेक्शंस. सो नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में वी विल बी हैविंग नॉर्थ वेस्ट. सो वी राइट हियर
N-O-R-T-H, north, west. Right? Then north and east के बीच में what we will write? We will write northeast. North, east, northeast, है ना? Now coming down, south and east के बीच में we will write southeast. And then साउथ एंड वेस्ट के बीच में we will have साउथ वेस्ट. Isn't it? See, this is so easy, right? So that is all, and our worksheet is finished.